محرم الحرام کی تیسری مجلس کا آغاز کرتے ہیں، اور یقیناً ایک مومن کے لیے اس سے بڑھ کے کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اس کے آنسو معصومائے کونین کے زخموں کا مرہم بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ یہ قطع بس پیش خدمت ہے کہ میری راہیں مجھے منزل کا پتہ دینے لگیں، واہ، میری راہیں مجھے منزل کا پتہ دینے لگیں، منزلیں بڑھ کے مجھے حق کی صدا دینے لگیں، سبحان اللہ۔ منزلیں بڑھ کے مجھے حق کی صدا دینے لگیں، سر جھکائے ہوئے پہنچا جو در زہرا پر، مجھ کو شہزادی کونین دعا دینے لگی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب۔ بس میں اسی قطعے کے ساتھ اب میں مائک دے رہا ہوں ہمارے آج کے ناظم جناب توقیر میری صاحب کو کہ وہ اس کا باقاعدہ آغاز کرے اس وجہ سے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم حاضرین اور ناظرین۔ آج محرم کی 3 تاریخ، اس کا آغاز ہم سب سے پہلے ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دوں گا جناب طاہر سید صاحب کو کہ آغاز کریں۔ صلوات اللہم صلی صلی علی اللہ محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس الوقعہ کاذبہ حافظۃ الرافعہ، اذا رجت الارض رجہ وبست الجبال بسا وکانت ہباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثہ، اصحاب المیمانات ما اصحاب المیمانہ واصحاب المشامات ما اصحاب المشامہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم وثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون فی اکواب وابارک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تسیما الا قلیلا سلاما سلاما واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فسدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ إنا أنشأناهن أنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الخنس العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجرة من الزقوم وملؤون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحميم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إن لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي ترون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون
فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليات جحيم إن هذا لهو اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شکریہ طاہر بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھا ہمارے طاہر سے صاحب. جناب السلام علیکم حاضرین ناظرین، یا علی مدد. آپ کا ہوسٹ سید توقیر مہدی زیدی آپ سے مخاطب ہے. آج کے محرم کی تیسری مجلس سے میں بغیر کسی ٹائم کو ضائع کیے ہوئے ایک 4 لائنیں اگر اجازت ہو تو ایک قطع مولا علی کی شان میں. واہ واہ واہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. ثنائے مرتضی ہے اور میں ہوں، یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں. فرشتوں قبر میں آہستہ بولو، یہاں شیر خدا ہے اور میں ہوں. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں شیر خدا ہے اور میں ہوں. واہ واہ، اور میں ہوں. درود بر محمد و آل محمد. اللہم علی مدد. اس کے بعد میں گزارش کروں گا برادر حسن نقوی صاحب سے کہ وہ شہداء کربلا کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. جناب. اہل عزا پیام حسینی سنا تو دو. سبحان اللہ. اہل عزا پیام حسینی سنا تو دو، نالوں سے آسمان و زمین کو ہلا تو دو. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل عزا پیام حسینی سنا تو دو، دل میں پسر کے بیاہ کا ارمان رہ نہ جائے، دل میں پسر کے بیاہ کا ارمان رہ نہ جائے، بانو تم اپنے لال کو دولہا بنا تو کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل عزا پیام حسینی ماشاءاللہ سنا ماشاءاللہ تو جزاک اللہ. دو، تو کس کی مجال چادر زینب کو چھین لے، کس کی مجال چادر زینب کو چھین لے، عباس نامدار کا شانہ ہلا تو دو، اہل عزا پیام حسینی سنا تو دو. جاتا ہے تیر کھانے کو میدان میں شیر خوار، جاتا ہے تیر کھانے کو میدان میں شیر خوار، بانو تم اپنے لال کی منت بڑھا تو دو، اہل عزا پیام حسینی سنا تو دو. لاشا کہیں صغیر کا پامال ہو نہ جائے، لاشا کہیں صغیر کا پامال ہو نہ جائے، رن میں حسین چھوٹی سی
تربت بنا تو دو اہل عذاب پیام حسینی سنا تو دو اسلام کی بقا کے لیے اے حسین آج اسلام کی بقا کے لیے اے حسین آج ہم شکل مصطفیٰ کی جوانی لٹا تو دو اہل عذاب پیام حسینی سنا تو دو عباس جا رہے ہو تو مشقیزہ لے کے جاؤ عباس جا رہے ہو تو مشقیزہ لے کے جاؤ پیاسی سکینہ ہے اسے پانی پلا تو دو اہل عذاب پیام حسینی سنا تو دو اہل حرم کی چھین کے چادر یہ بولا شیم اہل حرم کی چھین کے چادر یہ بولا شیم بیمار ناتوان کو بیڑی پہنا تو دو اہل عذاب پیام حسینی سنا تو دو نالوں سے آسمان و زمین کو ہلا تو دو سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ مولا کو توفیق میں اضافہ کرے. میں آج کے اسپانسر کا میں بتاتا چلوں کہ آج کی مجلس کے اسپانسر ہیں جناب برادر جہاز بھٹی صاحب, حسن نقوی صاحب اور سلطان سید صاحب. مولا ان تمام حضرات کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کے مرحومین اور ہم جملہ جو اس وقت حاضرین مجلس ہیں سب کی مرحومین بھی تو ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, ان کو درجات بلند کرے. ایک سورہ فاتحہ کی میں درخواست کروں گا تمام حضرات سے کہ ان تمام حضرات مرحومین کو بخش دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ کفیر بھائی, جزاک اللہ. شکریہ. میں اس کے ساتھ ہی میں دعوت دوں گا جناب قبلہ و کعبہ مولانا اسد علی عابدی صاحب کو کہ وہ مجلس سے خطاب فرمائے. مولانا اسد علی عابدی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى إترته الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها صلوات. اللهم صل على محمد محمد. ایک مرتبہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین شیعیان جہان. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللهم صل على محمد دنیا میں جتنے عزیزان محترم, ارشاد اہلیت یہ ہے والشمس وضحاها کہ قسم ہے ہمیں سورج کے کمال کی کہ جو اپنے کمال سے
दुनिया को एक दूसरे के लिए आश्कार कर देता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, वल इज़ा तलाहा, और कसम है हमें सूरज के कमाल, चांद के कमाल की, कि जो 14वीं की शब में इसके पीछे पीछे चला आता है। वन्नहारे इज़ा जल्लाहा, और कसम है हमें दिन के कमाल की, कि जिसकी रोशनी में हर चीज एक दूसरे के लिए उजागर हो जाती है। वल्लैल इज़ा यग़शाहा, और कसम है हमें रात के कमाल की, कि जिसकी तारीकी तमाम दुनिया को एक दूसरे के लिए महवे हैरत कर देती है। वाह वाह वाह। वस्समाए वमा बनाहा, और कसम है हमें आसमान के कमाल की, कि हमने उसे कितना मोहकम और मुस्तहकम बनाया। वल अर्ज़ वमा तहाहा, और कसम है हमें ज़मीन के कमाल की, कि जिसके ऊपर हमने नबातात को, हैवानात को, इंसान को, तमाम के तमाम को इसी के ऊपर पैदा किया, इसी से इनका रिज़्क़ फराहम किया, इसी के ऊपर है और इसी के ऊपर ये मर जाते हैं, और सब का रिज़्क़ इसी ज़मीन से हमने मैसर फरमाया। वन्नफ्सिन वमा सव्वाहा, और कसम है हमें नफ्से इंसानी की, रूह इंसानी की, कि हमने इसे कितना बाकमाल बनाया। कद अफलह मन ज़क्काहा, जिसने इस नफ्स को कंट्रोल कर लिया वो कामयाब हो गया। वक़द खाब, और जिसने इस नफ्स के ऊपर कंट्रोल ना किया और खुद इसके चक्कर में आकर इंसान के अपने अमाल के ऊपर कंट्रोल ना रहे, तो ये इंसान आखिरत में नुकसान उठाएगा, खिसारा उठाएगा। खालिक कायनात अपनी मखलूकात के ऊपर जो है फख्र करके इरशाद फरमाता है। ये सूरह मक्की है, जिसे मक्के के अंदर नाजिल किया गया। इसे मक्के के अंदर क्यों नाजिल किया गया? क्योंकि मक्के के लोग बुत परस्त थे, सितारा परस्त थे, नजूम परस्त थे, जो बुतों की पूजा किया करते थे। जिस तरीके से इंसान अपने कमालात के ऊपर जो है फख्र करता है, अगर इंसान ने बल्ब का इजाद किया तो किताबों के अंदर, स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ाया जाता है कि बल्ब की तख्लीक किसने की, मोबाइल की तख्लीक किसने की, कंप्यूटर को इजाद किसने किया। इसी तरीके से खालिक कायनात अपनी खिलकत के जरिए से इंसानों को बतलाना चाह रहा है कि देखो मैंने सूरज को कितना बाकमाल पैदा किया, मैंने चांद को कितना बाकमाल पैदा किया, मैंने जमीन को कितना बाकमाल पैदा किया, मैंने इंसान को कितना बाकमाल पैदा किया, मैंने समंदर को कितना बाकमाल पैदा किया। खालिक कायनात समझाना ये चाहता है कि जिसकी मखलूक कितनी बाकमाल हो, उसका खालिक कितना बाकमाल होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाकमाल हो तो उसका खालिक कितना बाकमाल होगा। और आप ये देखिए कि जब भी इंसान किसी चीज की तख्लीक करता है तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है, किसी ना किसी की मोहब्बत में उस चीज को ईजाद करता है। आप ये देखिए, अगर मैंने इस घर को बनाया है, मैंने इस घर को बनाया है तो फकत इसलिए बनाया है ताकि मेरे बच्चे इसके अंदर आरामिश के साथ जिंदगी गुजार सकें। अगर किसी इंसान ने मशीन को, कार को बनाया है तो इसलिए बनाया है ताकि वो मीलों का, घंटों का सफर मिनटों के अंदर तय कर सके। अगर इंसान ने जहाज की तख्लीक की है तो फकत इसलिए ताकि वो महीनों के सफर को घंटों के अंदर तय कर सके। इंसान दुनिया के अंदर जो भी चीज बनाता है किसी न किसी की मोहब्बत में बनाता है, किसी न किसी गरज के तहत बनाता है। ए खालिक कायनात, तूने सूरज को बनाया, तूने चांद को बनाया, तूने जमीन को बनाया, तूने समंदर को बनाया, तूने हवाओं को बनाया, तूने सब्ज़ाजात को बनाया, तो तेरा मकसद क्या था? तो खालिक कायनात, हदीस किस्सा में हम रोज पढ़ते हैं, इन्नी मा खलक़्तु समा मबनिया, मैंने ये आसमान को नहीं बनाया, मैंने इस सूरज को नहीं बनाया, मैंने इस चांद को नहीं बनाया, मैंने इस नफ्स इंसानी को नहीं बनाया, मैंने ये समंदर नहीं बनाए, इल्ला फी महब्बत हाउलाइल खम्सतिल, सिवाय उनकी मोहब्बत में जो चादर किसा के अंदर मौजूद है।
जज़ाक अल्लाह। जिस चीज का खालिक इतना बाकमाल हो, जिसकी मखलूक इतनी बाकमाल हो, तो सोचो वो कितने बाकमाल होंगे कि जिनके सामने में इस कायनात को खल्क किया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कितने बाकमाल होंगे कि जिनके सदक़े में इस चीज को खल्क किया गया। और आप देखिए इसी तरीके से खालिक कायनात, ये सूरह मक्की है, मक्के के अंदर नाजिल किया गया। मक्के के अंदर क्यों नाजिल किया गया? क्योंकि मक्के के अंदर बुत परस्त रहा करते थे, मक्के के अंदर बुत परस्त रहा करते थे, वहां बुतों के पुजारी पाए जाया करते थे, सितारा परस्त पाए जाया करते थे, और इंसान मखलूकात की इबादतों को अंजाम दिया करता था। मक्के के ज़हनों को खालिक कायनात ने इस सूरह को मक्के में इसलिए नाजिल फरमाया कि मक्के वालों को समझाना ये चाहता था कि देखो, सूरज अपने वक्त से थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होता, चांद अपने वक्त के एतबार से काम करता है, जमीन अपने वक्त के एतबार से काम करती है। कभी सूरज की हरकत के अंदर कोई तगय्युर और तबद्दुल ना देखना, कभी चांद को हमारे अमल से इनहिराफ करते हुए ना देखना, कभी आसमान को अपने सिस्टम से हटते हुए ना देखना, कभी जमीन हमारे सिस्टम से मुखालफत करती हुई नजर नहीं आएगी, कभी दरिया हमारे सिस्टम से मुखालफत करते हुए नहीं नजर आएंगे। ऐ मक्के वालों, मैं तुम्हें समझाना ये चाहता हूं कि जो सिस्टम में रहा करता है वो मखलूक हुआ करता है, जो सिस्टम में रखे हुए होता है वो खालिक हुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसीलिए खालिक कायनात ने जब अपने तमाम कमालात को बयान फरमाया तो आखिर में कहा व नफ्सिन वमा सव्वाहा, हमने ये कमाल का नफ्स इंसानी बनाया जिसके अंदर गहराइयां हैं। देखिए, जब आदम को पैदा किया गया था तो खालिक कायनात ने क्या कहा था? वइज़ा सव्वैतु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, कि जब मैं इस पुतले के अंदर रूह को फूंकूं, अपनी रूह को फूंकूं, तो तुम सब के सब सजदे के अंदर गिर जाना। यानी पुतले को सजदा नहीं था, पुतला तो बन चुका था, बल्कि खालिक कायनात ने कहा कि जब रूह फूंक दी जाए तो रूह को सजदा करना। तो सजदा आदम को नहीं था, बल्कि खालिक कायनात ने कहा वइज़ा सव्वैतु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं इस पुतले को बना दूं और अपनी रूह इसके अंदर डाल दूं, अपनी रूह के अंदर रूह डाल दूं, तो तुम तमाम के तमाम सजदा बस सुजूद हो जाना। तो सजदा आदम को नहीं था, बल्कि रूह को था। तकबीर, अल्लाहु अकबर, खालिक कायनात ने, आप ये देखिए कुरान मजीद ने कहा यसअलूनका अनिर रूह, ए रसूल अकरम आपसे ये रूह के बारे में सवाल करते हैं, तो ए रसूल इन लोगों को बता दो कुली रूह मिन अम्रे रब्बी, के रूह अम्रे परवरदिगार है। रूह अम्रे परवरदिगार है, रूह खालिक कायनात की जानिब से है। और आप ये देखें कि इसी रूह के लिए इमाम जनाब रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं मन अरफा नफ्सा फकद अरफा रब्बा, कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, जिसने अपनी रूह को पहचान लिया, उसने अपने खालिक को भी पहचान लिया। जो इंसान अपने नफ्स को पहचान लेगा वो अपने खालिक को भी पहचान लेगा। रसूल ने कितने छोटे से कलमे में तौहीद को पहचानवा दिया। अगर तुम्हें अपने रब को पहचानना हो तो अपनी रूह को पहचान लो। जैसी तुम्हारी रूह है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हारा खालिक कैसा है। आप ये देखिए रूह की खसूसियात क्या है, रूह के इम्तियाजात क्या है। रूह को कोई इंसान देख नहीं सकता। है कोई दुनिया का इंसान जो ये दावा करे कि मैंने रूह को देखा है? नहीं। जिस तरीके से रूह को देखा नहीं गया, देखा नहीं जा सकता, उसी तरीके से खालिक को देखा नहीं जा सकता।
ठीक है, इमाम ने छोटे से कलमे में कहा मन अरफा नफ्सा फकद अरफा रब्बा, जिसने अपनी रूह को पहचान लिया वो अपने खालिक को पहचान लेगा। तो मासूम समझाना क्या चाहते हैं कि जिस तरीके से इंसान को रूह दिखाई नहीं देती, ऐसे ही इंसान को खालिक दिखाई नहीं दे सकता। कोई इंसान, दूसरी चीज जो मासूम जो समझाना चाहते हैं वो ये है कि आप ये देख लीजिए हमारे जिस्म के अंदर रूह मौजूद है, लेकिन क्या कोई इंसान कह सकता है कि जिस्म के फला हिस्से के अंदर फला जगह के ऊपर रूह रखी हुई है? जैसे कह देता है कि मेरा दिल बाई जानिब है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यहाँ पर मौजूद है, मेरे कान यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन क्या कोई इंसान दावा कर सकता है इस बात का, क्या कोई इंसान दावा कर सकता है इस बात का कि रूह जिस्म के फला हिस्से के अंदर मौजूद है? नहीं, कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि रूह किस जगह पर मौजूद है, बल्कि रूह तमाम आज़ा के अंदर मौजूद है। वाह 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 वाह, रूह तमाम आज़ा के अंदर मौजूद है। तो इसी तरीके से मासूम समझाना ये चाहते हैं, जिस तरीके से रूह की कोई जगह महदूद नहीं, मुहद्दद नहीं, इसी तरीके से खालिक के कायनात की कोई जगह मुहद्दद नहीं और सब जगह पर मौजूद है। इसीलिए तो जब किसी ने सवाल किया मासूम हमें बतला दीजिए कि खुदा कहाँ है, तो मासूम ने इरशाद फरमाया कि खुदा इंसान की रगे गर्दन से भी ज्यादा करीब है। रगे गर्दन से भी ज्यादा जो है करीब है। और फिर मासूम ने ये इरशाद क्यों फरमाया, मन अरफा नफ्सा फकद अरफा रब्बा। आप ये देखिए कि अगर रूह, तीसरी चीज जो मासूम समझाना चाहते थे वो ये थी कि आप ये देख लीजिए कि मेरे जिस्म के अंदर जब तक के रूह है तो मेरा जिस्म हरकत करता हुआ नजर आएगा, आंखें देखने का काम अंजाम देंगी, कान सुनने का काम अंजाम देंगे, जबान बोलने का काम अंजाम देगी, मुंह खाने का काम अंजाम देगा। तो ये आज़ाए इंसानी आज जो हरकत कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर एक रूह कार फरमा है। इसी तरीके से मासूम समझाना ये चाहते हैं कि ये जो कायनात हरकत कर रही है, सूरज अपनी जगह हरकत में है, चांद अपनी जगह हरकत में है, दरिया अपनी जगह हरकत में है, जमीन अपनी जगह खिदमत को अंजाम दे रही है, हवा अपनी जगह अपने फराइज को अंजाम दे रही है। ये जो कायनात का जर्रा जर्रा जो हरकत कर रहा है ये उसी की बिना पर हरकत कर रहा है क्योंकि इनके पीछे खालिक है। जिस तरीके से इंसान के जिस्म के अंदर रूह है। आप ये देखिए कि जिस तरीके से जिस्म के अंदर दो रूह नहीं हो सकती। कभी मैं आपके यहां पहुंचा और आप में से दो मोमिनीन के दरमियान में इख्तलाफ हो गया। मजलिस के बाद मुझे पकड़कर एक इंसान ने मेरा एक हाथ पकड़ा कि मौलाना हमारे घर पर आइए चाय पीजिएगा, दूसरे मोमिन ने मेरा दूसरा हाथ पकड़ा कि मौलाना हमारे यहाँ आइएगा, हमारे यहाँ चाय पीजिएगा। तो मैं परेशान हो जाऊंगा। एक इंसान मेरा ये दायां हाथ खींचता है, एक इंसान मेरा बायां हाथ खींचता है, मैं परेशान हो जाऊंगा, आया इधर जाऊं आया उधर जाऊं, तो इंसान परेशान हो जाएगा। जब दो इंसान बुलाने वाले हो, कभी आपने अपने नफ्स के अंदर इस तरह का इज़्तिराब, इस तरह की कैफियत, इस तरह की परेशानी देखी कि आपके जिस्म के अंदर जो है दो पावर आपको जो है अटैक कर रही हो, दो पावर आपको जो है सोर्स कर रही हो कि आप इस काम को करें। पैर आगे बढ़ना चाहता हो, दूसरी पावर ने उस पैर को खींच लिया हो, हाथ लिखना चाहता हो लेकिन दूसरी पावर उस हाथ को खींच रही हो। जिस तरीके से जिस्म के अंदर दो रूह नहीं हो सकती, उसी तरीके से कायनात के अंदर दो खालिक नहीं हो सकते। है कि कायनात में सिर्फ और सिर्फ एक खालिक है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले अब ये देखिए कि खुदावंद आलम ने इस जिस्म के अंदर रूह को वदीयत कर दिया। जब रूह को वदीयत कर दिया, आपके जिस्म के आज़ा मुख्तलिफ है। आपके पास आंख है, आपके पास कान है, आपके पास
मुंह है आपके पास, जिस्म के तमाम आज़ा आपके पास मौजूद हैं, लेकिन अगर जिस्म के किसी भी आज़ा को कोई तकलीफ पहुंचती है तो आपकी रूह उसे अलीम हो जाती है, उससे बाखबर हो जाती है, उससे खबीर हो जाती है। आपके जिस्म के किसी भी पार्ट को, किसी भी हिस्से को अगर थोड़ा सा भी आसेब पहुंचा तो आप कि रूह से बाखबर हो जाती है। रूह जिस्म के हिस्से से, आज़ा से बाखबर होती है। जैसे ही जिस्म के किसी हिस्से को आसेब पहुंचता है तो रूह सबसे पहले बाखबर हो जाती है। मासूम भी यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से जिस्म के अंदर रूह थोड़े से भी आसेब से बाखबर हो जाती है, उसी तरीके से खालिके कायनात दुनिया के अंदर जितनी भी हलचलें होती है वो खालिके कायनात उसके ऊपर अलीम है। हर चीज की खबर है। फकत शर्त यह है कि इंसान उससे लो लगाए तो वो खाली किसी इंसान से मुत्तसिल हो जाएगा। सलावत बड़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फिर इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अतज़मु अन्नका जिर्मुन सगीर लक़द इंतबा फ़ीका आलमुल अकबर। ए इंसान, तू ये मत सोचना कि तू एक छोटी सी मखलूक है, एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा है। लक़द इंतबा फ़ीका आलमुल अकबर। नहीं है इंसान, तू अपने आप को छोटा मत समझना। लक़द इंतबा फ़ीका आलमुल अकबर। हमने तेरे अंदर पूरे आलम का खुलासा कर दिया है। तू पूरे आलम की समेरी है, तू पूरे आलम की समेरी है। पूरे आलम का खुलासा हमने तेरे अंदर किया है। और फिर कुरान मजीद ने कहा, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन मखलूक़ात करार दिया, हमने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात करार दिया। आप ये देखें कि इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अतज़मु अन्नका जिर्मुन सगीर, क्या तू सोचता है कि तू एक छोटी सी मखलूक है। लक़द इंतबा फ़ीका आलमुल अकबर। नहीं, बल्कि तेरे अंदर पूरे आलम का खुलासा किया गया है। अगर आलम में रोशनी के लिए चांद और आफताब को रखा गया, आफताब और महताब को रखा गया, तो हमने भी तुझे दो आंखें दी हैं। जैसे चांद और सूरज दुनिया को दुनिया के लिए उजागर करती हैं, ये आंखें तुम्हारे लिए दुनिया को उजागर करेगी। अगर हमने कायनात के अंदर दरियाओं की रवानी के जरिए से जमीन को लहलाते हुए परचम के लिए मामूर किया, ताकि सब्ज़ाजात को उगाए, जिससे इंसान जी सके, हैवानात जी सके, नबातात उग सके। जैसे दरियाओं को हमने मामूर किया कि जमीन के ऊपर फैल जाइए और फैलने के बाद इस जमीन की मखलूकात को इस्तिफादा पहुंचाइए। जिस तरीके से दरिया हमने जमीन के ऊपर रखे, ऐसे ही हमने खून के बहते हुए दरिया रगों की सूरत में इंसान के अंदर जारी कर दिए, ताकि जिस्म के हिस्से को मुस्तफीद पहुंचाते रहे। बाल अपना हक हासिल करता रहे, नाखून अपना हक हासिल करता रहे, दिमाग अपना हक हासिल करता रहे, पेट अपना हक हासिल करता रहे। जिस तरीके से दरियाओं से ये कायनात जिंदा है, उसी तरीके से रगों से इंसानी जिस्म जो है जिंदा है, इंसानी रूह जो है जिंदा है। माशाअल्लाह, नारे सलवात। जिस तरीके से कायनात में ठाटे मारता हुआ समंदर हमने पैदा किया, ताकि उससे बादल उठें और जगह जगह पर जाकर बारिश को बरसा दें और दुनिया, हमारी बनाई हुई दुनिया सरसब्ज़ व शादाब रहे। इसी तरीके से है नफ्से इंसानी, है जिस्म इंसानी, हमने तुझे जिंदा रखने के लिए तेरे अंदर एक खून का मौज मारता हुआ समंदर दिल की सूरत में रखा, जिसके जरिए से तमाम आज़ाओं के अंदर ये खून का दौरान बढ़ता रहता है। अगर एक नस ब्लॉक हो जाए या चंद नस ब्लॉक हो जाए तो इंसान मर जाता है। जैसे समंदर के जरिए से दुनिया का निशान जारी है, उसी तरीके से इसी दिल के जरिए से, इस दिल के खून के फव्वारे के जरिए से नफ्स इंसानी बचा हुआ है, जिसमें इंसानी बचा हुआ है। नफ्स इंसानी बचा हुआ है, जिसमें इंसानी बचा हुआ है। अगर अतज़मु अन्नका जिर्मुन सगीर, तुम ये गुमान न करना कि तुम एक छोटे से जरसुमा हो, बल लक़द इंतबा फ़ीका आलमुल अकबर, बल्कि तुम्हारे अंदर हमने पूरा आलम अकबर जो है वो समो दिया है। और आप ये देखिए, तौहीद के सिलसिले में, क्योंकि डॉक्टर साहब का हुक्म था कि तौहीद के सिलसिले में चंद एक बातें बोली जाएं, अगरचे
लैपटॉप के ऊपर या जो है इंटरनेट के ऊपर बोलना बड़ा मुश्किल होता है जब कोई इंसान दकीक मफाहिम को बयान करता है, लेकिन हुक्म के इम्तिसाल के लिए मैं हाजिर हो गया। आप ये देखें, मासूम जब भी कोई इंसान आया करता था और आने के बाद मासूम से मालूम किया करता था, ये अपना रसूलुल्लाह हमें जो है तौहीद सिखा दीजिए, तो मासूम कभी बहुत फसीह व बलीग, बहुत लंबे चौड़े कलमात, बहुत लंबे चौड़े खुतबात इरशाद नहीं फरमाया करते थे, बल्कि एक छोटे से कलमे से पूरी दुनिया को समझा दिया करते थे, पूरी दुनिया थे। जैसे इमाम लोगों में इमाम होता है, इमाम का कलाम भी लोगों के कलामों का इमाम हुआ करता है। वाह 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 वाह। इमाम का कलाम भी लोगों के कलामों का इमाम हुआ करता है। एक शख्स आया आने के बाद, एक शख्स देहाती आया आने के बाद इमाम सादिक से कहने लगा, फर्जंदे रसूल मुझे तौहीद को समझा दीजिए। अगर इमाम उस देहाती के सामने फलसफियाना गुफ्तगू करते तो वो समझ ना पाता, लेकिन इमाम ने एक छोटे से कलमे से उसे तौहीद को समझा दिया। अलबेरतो तदुल्लु अलल बाईर वर्रोसतो तदुल्लु अलल हमीर वासारुल कदम यदुल्लु अलल मसीर। कि मैंगनिया अगर कहीं पर देख लो तो तुम समझ जाते हो कि यहां से बकरी गुजरी है। लीद अगर तुम कहीं सहरा के अंदर देख लो तो तुम समझ जाते हो कि यहां से कोई घोड़ा गुजरा है। वह आसारुल कदम तदुल्लु अलल मसीर। और जब तुम किसी इंसान के जाने के नक्शे कदम सेहरा के अंदर देख लो तो तुम समझ जाते हो कि यहां से इंसान गुजरा है। जब ये मखलूकात को तुम मुशाहिदा कर रहे हो तो समझ लो कि इस मखलूकात का कोई खालिक भी है जिसे अल्लाह कहा जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे सलावत। एक ज़ईफ़ा आई आने के बाद कहने लगी कि फर्जंदे रसूल मुझे तौहीद सिखला दीजिए। तो इमाम ने एक छोटे से कलमे के अंदर, छोटे से जुमले के अंदर तौहीद को समझा दिया। अलैकुम बिदीनिल जायज़, तुम्हारे ऊपर वाजिब है कि कम से कम एक ज़ईफ़ा जितना अकीदा तो रखती होंगी, एक ज़ईफ़ा जितनी पहचान तो रखती होंगी। फर्जंदे रसूल ने समझाना ये चाहा कि जिस तरीके से ज़ईफ़ा एक चरखे से सूत को काटती है, जब तक वो चलाती है तो चरखा चलता रहता है, जैसे ही वो हाथ को रोक लेती है तो चरखा रुक जाता है। चरखा जब चलाती है तो चलता है, जब रोकती है तो रुक जाता है। उसी तरीके से कायनात, जिस तरीके से चरखा बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकता, उसी तरीके से ये कायनात बगैर चलाने वाले के हरकत में नहीं रह सकती। जो इस कायनात को माशाअल्लाह माशाअल्लाह वही माशाअल्लाह। खालिक है, वही राज़िक है, वही रब है। सलावत बड़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज साइंसदान कहते हैं कि दुनिया सिद्फतन वजूद में आ गई, नागहानी वजूद में आ गई। आप ये देखिए, अगर आप जिस घर के अंदर आप बैठे हुए हैं, आया ये घर क्या खुद ब खुद वजूद में आ गया? नहीं, बल्कि इस घर के अंदर कमरों का बनना, एसी का लगना, पंखों का मुनज़्ज़म होना, फर्श का बनना, तमाम का तमाम ये सिस्टम किस तरह से पाया गया? तमाम का तमाम ये सिस्टम क्या खुद ब खुद अंजाम में आ गया? नहीं, बल्कि इसके पीछे एक इंजीनियर का हाथ था, एक बनाने वाले का हाथ था। जिस तरीके से घर बगैर बनाने वाले के नहीं वजूद में आ सकता, उसी तरीके से कायनात बगैर बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती। नज़्म यदुल्लु अलल मुनज़्ज़िम, कि हर नज़्म, हर सिस्टम दलालत करता है कि उसके पीछे कोई सिस्टम का बनाने वाला है। घर अगर ये सिस्टम के अंदर पाया जाता है कि इसके अंदर इतने कमरे हैं, इतने किचन हैं, इतने बाथरूम हैं, इतने इसके अंदर एसी है, ये तमाम का तमाम सिस्टम बताता है कि इस घर का बनाने वाला भी कोई है, इस घर के अंदर रहने वाला भी कोई है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। देखिए, सुभान पंखे के अंदर अल्लाह। पंखड़ियां पाई जाती है, मोटर पाई जाती है, वायर पाए जाते हैं, पेंच पाए जाते हैं। जब ये तमाम के तमाम मुनज़्ज़म तौर पर जिसकी जहां पर जगह है वहां पर फिट कर दिए जाएंगे तो पंखा काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर इसमें से एक भी चीज उस सिस्टम से हट जाए, पंखड़ियां अगर पंखे के मोटर से हट जाए तो पंखा चल नहीं सकता। अंदर का मोटर अगर उससे निकाल लिया जाए,
तो ये पंखा चल नहीं सकता। जब ये सिस्टम पूरा मुनज़्ज़म होकर काम करेगा तो पंखा चलता हुआ नजर आएगा। तो हर सिस्टम के पीछे एक मुनज़्ज़िम होता है। इसी तरीके से ये कायनात के अंदर सूरज का वक्त के ऊपर निकलना, चांद का वक्त के ऊपर निकलना, जमीन का वक्तों के एतबार से फसलें देना, हवाओं का जमाने के तकाजाओं के एतबार से ठंडा और गर्म होना, दरियाओं का मौसम के लिहाज से बहना, ये तमाम का तमाम सिस्टम बतलाता है कि तमाम कायनात किसी सिस्टम के तहत है। जो सिस्टम को चला रहा है वही खालिक है, वही राज़िक है। बहरहाल ये गहरे मफाहिम थे। अब बच्चों के लिए एक वाकया ताकि जो है बच्चों को याद रह जाए। इमाम अबू हनीफा ने कहा कि देखो, मुझे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की 3 चीजें समझ में नहीं आती। तौहीद के सिलसिले में इमाम अबू हनीफा ने कहा कि मुझे सादिक आले मोहम्मद की 3 चीजें समझ में नहीं आती। एक ये कि शैतान को जहन्नम में डाला जाएगा, शैतान भी आग से बना है, जहन्नम भी आग है, आग को किस तरह से जलाएगी? आग को किस तरह से जलाएगी? दूसरा जो एतराज किया इमाम अबू हनीफा ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम पर, वो ये किया कि जो होता है वो दिखता है। अगर खुदा है तो वो दिखेगा, लिहाजा वो इस अकीदे के कायल हो गए कि रोज़ो क़यामत खुदावंद आलम एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ होगा। जो होता है वो दिखता है, लिहाजा इस अकीदे के कायल हो गए कि रोज़े क़यामत खुदावंद आलम एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। लिहाजा सादिक आले मोहम्मद जो ये कहते हैं कि खुदा दिखाई नहीं देता, ये मेरी बात समझ में नहीं आती। जो होता है वो दिखता है, लिहाजा खुदा को दिखना चाहिए। सादिक आले मोहम्मद का ये कहना कि खुदा दिखाई नहीं देता, मैं इस चीज को नहीं मानता। तीसरी चीज जो इमाम अबू हनीफा ने इतराज किया वो ये किया कि इंसान जो भी करता है वो अकेले खुद नहीं कर सकता, बल्कि खुदा की मशीयत उसके अंदर शामिल होती है। अगर मशीयत ना चाहे तो इंसान किसी काम को अंजाम नहीं दे सकता। बहलूल दाना जो इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम के सहाबी थे, आप इनके दर्स के अंदर बैठे हुए थे और इमाम अबू हनीफा इस चीज को तुल्लाब के दरमियान में, स्टूडेंट के दरमियान में पढ़ा रहे थे। जब बहलूल दाना ने ये तीनों एतराज इमाम सादिक अलैहिस्सलाम पर वारिद कर दिए तो बहलूल दाना ने एक मोटा सा ढेला लिया और ढेला उठाने के बाद इमाम अबू हनीफा को मार दिया, और इतना तेज मारा कि फौरन चेहरे के ऊपर निशान पड़ गया। चेहरे के ऊपर निशान पड़ गया। अब किसी के स्टूडेंट के सामने अगर उसको मार दीजिए तो सोचेंगे उसके स्टूडेंट तुम्हारा क्या हाल करेंगे। स्टूडेंट ने जनाबे बहलूल को मारना और पीटना शुरू कर दिया। इतने में फौजी आए, पुलिस वाले आए, पकड़ कर ले गए दादगाह कोर्ट और कचहरी के अंदर। काजी ने दोनों फरीक को बुला लिया। एक तरफ इमाम अबू हनीफा हैं, दूसरी तरफ बहलूल हैं। इमाम अबू हनीफा कहने लगे कि इस शख्स ने मेरे इस तरीके से इतनी तेजी से डला मारा कि मेरे यहाँ पर गुम्बा पड़ गया, मेरा माथा भूल गया है, जिसके अंदर दर्द हो रहा है। एक मर्तबा काजी ने कहा, बहलूल तुमने इन्हें डला क्यों मारा? कहा कि मैंने नहीं मारा, क्योंकि ये दर्स के अंदर कह रहे थे, इंसान जो भी करता है मशीयत इलाही से करता है। लिहाजा ये डला मैंने नहीं मारा, उसकी मशीयत इलाही थी। तो मुझे क्यों पकड़ रहे हो? उसकी मशीयत इलाही को पकड़ो। काजी खामोश है। कहा कि अब इमाम हनीफा कहने लगे कि मेरे सिर के अंदर दर्द हो रहा है। तो एक मर्तबा बहलूल ने कहा कि अगर दर्द हो रहा है तो दिखाओ, क्योंकि जो होता है, आप ही तो कह रहे थे, जो होता है वो दिखता है। अगर तुम्हारे जिस्म के अंदर दर्द है तो मुझे दिखाओ कि वो दर्द कहाँ हो रहा है। वो दिखाओ कि वो दर्द कहाँ पर हो रहा है। सलवात बड़े पर मोहम्मद वाले और आप ये कह रहे थे कि जहन्नम की आग
शैतान को नहीं जला सकती, क्योंकि शैतान भी आग से बना है और जहन्नम भी आग से बनी है। तो मैंने जो ढेला मारा था वो भी मिट्टी का था और तुम भी मिट्टी के थे। लिहाजा जिस तरीके से आग आग को नहीं जला सकती तुम्हारे इल्म के मुताबिक, उसी तरीके से मिट्टी मिट्टी को अजियत नहीं पहुंचा सकती तुम्हारे इल्म के मुताबिक। जब बहलूल की ये ज़कावत को देखा तो मोतरिफ हो गया कि ये सादिक आले मोहम्मद का दीवाना है। जिनके दीवाने ऐसे हो तो सोचो फिर उसका दाना इमाम सादिक कैसा होगा, इमाम काजिम कैसा होगा। और कुरान मजीद में इरशाद हुआ, अन्नफ्सो व नफ्सिम वमा सव्वाहा, कि हमने कितने कमाल का नफ्स बनाया। और नफ्स के लिए ये कहा जाता है अन्नफ्सो जिस्मानियतुल हुदूस व रूहानियतुल बका, कि नफ्स इंसानी पैदा होने में तो जिस्म इंसानी का मोहताज है, लेकिन बाकी रहने में जिस्म इंसानी का मोहताज नहीं है। यानी जब इंसान अपने बाप के सुल्ब में हो और बाप के सुल्ब से मुंतकिल हो रहमे मादर में जब इंसान 4 महीने की मुद्दत के करीब आता है तो उसके अंदर रूह को वदीयत कर दिया जाता है। तो रूह के पैदा होने के लिए, नफ्स के पैदा होने के लिए तो इंसान के जिस्म की मोहताज है, रूह पैदा होने के लिए जिस्म की मोहताज है, लेकिन बाकी रहने के लिए जिस्म की मोहताज नहीं है। जब रहमे मादर में इंसान 4 महीने के हमल में हो जाता है तो रूह उसके अंदर वदीयत कर दी जाती है। फिर इंसान दुनिया के अंदर आता है, दुनिया के अंदर ये रूह सीखती रहती है। जब इंसान दुनिया के अंदर आता है, इसे नहीं पता कि मुझे माँ के साथ कैसा बर्ताव करना है। जब ये थोड़ी सी नौजवानी में आता है तो इसे नहीं पता होता कि मुझे अपने नौजवान दोस्तों के साथ कैसे रहना है। जब ये जवानी में आता है तो इसे नहीं पता होता कि मुझे जवानों के साथ और दुनिया के साथ कैसे पेश आना है। जब ये बुढ़ापे में आता है तो इसे नहीं पता होता कि मैं बुढ़ापे के फराइज को किस तरह से अंजाम दूं। इंसान दुनिया के अंदर आता है, बचपने में आता है तो बचपने के जीने का सलीका सीखता है, नौजवानी में आता है तो नौजवानी में जीने का सलीका सीखता है, जब जवानी में आता है तो जवानी के उमूर को सीखता है, जब बुढ़ापे में आता है तो बुढ़ापे के उमूर को सीखता है। जब ये तमाम चीजें रूह सीख लेती है, फिर खालिक कायनात इससे रूह को अख्ज़ कर लेता है कि जब तुम्हें जीना आ गया तो हम तुम्हें दूसरी दुनिया के अंदर भेज रहे हैं, वहां पर जाकर उसी एतबार से अपनी जिंदगी को गुजारना। ठीक उसी तरीके से जैसे एक गुलाब का पौधा, जब गुलाब का पौधा उगता है और उसके अंदर कोई कली वदीयत होती है, जब कली आती है तो कली के अंदर कोई खुशबू नहीं होती। जैसे ही कली खिलना शुरू करती है तो नेचर उसके अंदर खुशबू को वदीयत कर देता है। कोई बागबान इंजेक्शन के जरिए उसके अंदर खुशबू को नहीं डालता, कोई किसान उसके अंदर पानी के जरिए खुशबू नहीं डालता, खाद के जरिए खुशबू नहीं डालता। बल्कि जब वो कली खिलना शुरू हो जाती है तो खालिक के कायनात उसके अंदर खुशबू को वदीयत कर देता है। ये खुशबू पैदा होने में तो पौधे की मोहताज है, ये खुशबू पैदा होने में तो पौधे की मोहताज है, लेकिन बाकी रहने में पौधे की मोहताज नहीं है। अगर कोई खुशकी ऐसा हो कि जो इस फूल से खुशबू को अख्ज़ कर ले और उसे निकाल कर किसी बोतल में कर ले तो फूल की खुशबू तो बाकी रह जाएगी, पौधा नाबूद हो जाएगा। उसी तरीके से वो खालिक के कायनात इस इंसान से जिस तरीके से कोई खुशबू को निकालने वाला फूल से खुशबू को निकाल कर एक बोतल में कर लेता है और पौधा नाबूद हो जाता है, वो खुशबू सालों बाकी रहा करती है। उस अत्तार की मर्जी होती है कि वो उस खुशबू को कहाँ बेचे और कहाँ लगाए। इसी तरीके से खालिक के कायनात ने इस इंसान को रूह दी, इसे नौजवानी के मरहले में रखा, जवानी के मरहले में रखा, बुढ़ापे के मरहले में रखा। जब ये इंसान जीना रहना और अपने अमालों को करना सीख गया तो उसने इस जिस्म इंसानी से रूह को अख्ज़ कर लिया ताकि इस रूह को दूसरे मरहले में दाखिल कर दे। जैसी हमारी हयात जमीन के अंदर पौधों के अंदर थी, जब पौधे फूल और सब्जी का आकार ले रहे थे, जब पौधे फूल और सब्जी का आकार ले रहे थे, फूल और सब्जी से वो मादा मुंतकिल हुआ जिसमें इंसानी में नुत्फा बना, नुत्फे से अलका बना, अलके से मज़गा बना, मज़गा से इंसान बना, मज़गा से इंसान बना।
कितने मराहिल को तय करता हुआ आया, उसी तरीके से जिस तरीके से हमारी हर मरहले के अंदर एक हयात पाई जाती थी, उसी तरीके से खालिक के कायनात ने कहा कि रूह के भी मराइल हैं, रूह तुमसे पहले भी हुआ करती है, तुमसे बाद भी हुआ करती है। रूह तुमसे पहले भी हुआ करती है, तुमसे बाद भी। इंशाअल्लाह सलवात बड़े बर मोहम्मद वाले। क्योंकि वक्त की मेरे ऊपर पाबंदी है, इंशाअल्लाह आगे के मसाइल आइंदा मजालिस के अंदर कभी अगर मौका मिला तो जरूर जो है मैं पढ़ूंगा। आप ये देखिए, हम अब माह मुहर्रमुल हराम मना रहे हैं। माह मुहर्रमुल हराम इसलिए मनाया जाता है ताकि हम तौहीद की मार्फत हासिल कर लें, अहले बैत की मार्फत हासिल कर लें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अहले बैत की मार्फत हासिल कर लें, तौहीद की मार्फत हासिल कर लें, अपने बच्चों के आमाल की इस्लाह कर लें, अपने बच्चों के रूह की तरबियत कर लें, सुभान अल्लाह, अपने बच्चों की रूह की तरबियत कर लें। और ये सबसे अच्छा मौका होता है इंसान के लिए कि वो इन मजालिस को गनीमत समझे, क्योंकि ये मजालिस इंसान की तरबियत के लिए सबसे अच्छा ज़मीना है। क्योंकि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया करते थे, माँ हर चे दारीम अज़ादारी दारीम, कि हमारे पास आज जो भी कुछ पाया जाता है, चाहे वो हुकूमत पाई जाती हो, चाहे वो खुतबा पाए जाते हो, चाहे वो साइंटिस्ट पाए जाते हो, चाहे वो इंजीनियर पाए जाते हो, चाहे वो निज़ाम पाया जाता हो, तमाम का तमाम जो भी कुछ हमारे पास पाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ आजादारी की बिना पर पाया जाता है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे घरों के अंदर भी तुम्हारे बच्चे अच्छे हो, तुम्हारी नस्लें अच्छी हो, तुम्हारा खानवादा अच्छा हो, हर भाई भाई का एहतराम करे, बेटे बाप का एहतराम करे, बाप बेटे का एहतराम करे, बहनें बहनों का एहतराम करे, बहनें बाप की इज्जत का ख्याल रखें, तो इस आजादारी को सही से बर्पा करो। इस आजादारी में ऐसी चीजें बयान करो जो इंसान की जिंदगी से मुताल्लिक हो, जो उनकी रूह से मुताल्लिक हो, जो उनकी दुनिया से मुताल्लिक हो, जो उनकी आखिरत से मुताल्लिक हो। अगर तुमने आजादारी को सही कर लिया तो अपने खानवादे को सही कर लिया, अगर खानवादे को सही कर लिया तो तुमने मुसलमानों को सही कर लिया, जब मुसलमानों को सही कर लिया तो गोया कि तुमने इस्लाम के पैगाम को आम कर दिया, तुमने इस्लाम की मदद कर दी, तुमने इस्लाम की नुसरत कर दी। तुम्हारा शुमार फकत जाकिरीन में नहीं होगा, फकत आमिलीन में नहीं होगा, बल्कि रसूल की हदीस ये है कि फिर तुम्हारा शुमार जो है अंबिया और आइम्मा के साथ होगा, क्योंकि तुम मशले राहे हिदायत हो, क्योंकि तुम नूरे हिदायत हो। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजो, आज तीसरी मुहर्रम है, आज तीसरी मुहर्रम है। आप ये देखें कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं सोचा कि फकत हमारी नमाजें हमारे लिए काफी हैं, हमारे रोजे हमारे लिए काफी हैं, बल्कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने ये सोचा कि ये दीन हमारी उम्मत तक पहुंचना चाहिए, हमारी उम्मत तक पहुंचना चाहिए, लिहाजा इसके लिए कुर्बानियां दी। जब एक मर्तबा कूफे के अंदर से खुतूत जारी हुए, हुसैन आइए हमारी नुसरत के लिए आइए, हुसैन आइए हमें तबलीग के लिए आइए, हुसैन आइए हमारे पास इमाम जुमा वल जमात नहीं है, हुसैन आइए दीनी फराइज को अंजाम दीजिए। जब खुतूत बराबर पहुंचते रहे तो इमाम हुसैन ने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को कहा, ए मुस्लिम बिन अकील, तुम हमारे अमीर बनकर कूफे के अंदर जाओ। जब जनाबे मुस्लिम कूफे के अंदर आए, 18,000 लोगों ने आपके हाथ के ऊपर बैत की, लेकिन जैसे ही इब्ने ज़ियाद को पता चला, जैसे ही यजीद को पता चला तो इब्ने ज़ियाद को भेजा, तमाम कूफे वाले पलट गए, तमाम ने बैतें तोड़ दी, बैतें तोड़ दी। अब कूफे में मुस्लिम हैरान और परेशान है, हैरान और परेशान है कि जाऊं तो कहां जाऊं। जाकर एक दरवाजे के ऊपर बैठ गए, एक मोमिना के दरवाजे के ऊपर बैठ गए। मोमिना बाहर आई, देखा कोई इंसान बैठा हुआ है, कहा कि इस मुफलिसी के आलम में, इस गुर्बत के आलम में, इस जमाने पुराशोब में आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो, अपने घर को चले जाइए। मुस्लिम कहने लगे, अरे जिसका कोई घर ना हो वो कहाँ जाए। कहा कि कौन हो, कहा कि मैं अली का भतीजा हूँ, रसूल का करबदार हूँ। जब रसूल का नाम सुना तो आने घर के अंदर जगह दे दी। जनाबे मुस्लिम एक कमरे के अंदर चले गए। जनाबे मुस्लिम जब रात को सोए तो
تو خواب کے اندر دیکھا جناب امیر تشریف لائے ہیں، اے مسلم ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ مسلم بیدار ہوئے، سمجھ گئے کہ آج ہماری شہادت کا دن ہے، اسلحے کو زیب تن کیا۔ جب گھر سے باہر نکلے تو فوجیں اشقیاء کھڑی ہوئی تھی، پہلے سے ہی اپنی جنگی نظام کی تیاریاں کی ہوئی تھی۔ ایک گھڑا کھودا ہوا تھا جسے گھاس سے آٹ دیا گیا، فوج آگے بڑھی، گھڑے کو پیچھے رکھا گیا۔ اب جب مسلم گھر سے نکلے، عرب کے اندر یہ خاندان، دنیا کے اندر اس زمانے میں سب سے زیادہ جنگجو عرب ہوا کرتے تھے، عربوں کے اندر سب سے مشہور جو تلواریں ہوا کرتی تھی وہ بنی ہاشم کی کہلاتی تھی۔ بنی ہاشم میں مسلم سب سے بڑے جنگجو تھے، لہذا مسلم لڑتے رہے، مسلم لڑتے رہے، فوج پیچھے ہٹتی رہی، فوج سائیڈ سے پیچھے ہٹتی رہی۔ جیسے جیسے فوج ہٹتی تھی مسلم آگے بڑھتے جاتے تھے۔ اتنے میں جناب مسلم کا پیر اس گڑھے کے اوپر پڑا، مسلم گڑھے کے اندر چلے گئے۔ جیسے ہی گڑھے کے اندر پہنچے تمام فوج نے گھیر لیا۔ اب جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ مارتا تھا، جس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار مارتا تھا، جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ پتھر مارتا تھا۔ اب جیسے ہی جناب مسلم کو کوئی نقصان پہنچتا تھا، جناب مسلم کہتے تھے آج میرا عباس ہوتا، اے کاش آج میرا علی اکبر ہوتا۔ جناب مسلم کو اسیر کر لیا گیا۔ جیسے ہی دروازے سے دارالامارہ میں داخل کیا گیا تو وہاں پر ایک خادم بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ مسلم کا سینہ تنا ہوا ہے، اس ہاتھ سے کبھی ایک انسان کو جھٹکتے ہیں کبھی دوسرے کو جھٹکتے ہیں، زبان کے اندر روب طاری ہے، چہرے کے اوپر روب طاری ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ کا دن تھا جب مسلم کوفے کے دربار کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اب یہ انسان کہتا ہے کہ میں نے 12ویں محرم کو بھی بنی ہاشم کے امام کو آتے ہوئے دیکھا، جیسے ہی سید سجاد کو آتے ہوئے دیکھا تو سید سجاد نظریں جھکی ہوئی تھی، گردن جھکی ہوئی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ سید سجاد شرمندگی کے ساتھ دروازے کے اندر داخل ہو رہے تھے، ابھی سے برداشت نہ ہوا، کہنے لگا 9 ذی الحجہ کو مسلم بھی یہاں پر آئے تھے، لیکن مسلم کے آنے میں تمہارے آنے میں بہت زیادہ فرق موجود ہے۔ جب مسلم آئے تھے سینہ تنا ہوا تھا، آنکھیں شیر کی طرح باہر تھی، کبھی اس ہاتھ سے جھٹکتے تھے کبھی اس ہاتھ سے کسی کو جھٹکتے تھے، لیکن اے سید سجاد، ارے تم تو وقت کے امام ہو، تمہاری آنکھیں جھکی ہوئی ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، تمہارا یہ عالم کیوں؟ سید سجاد تڑپ گئے، اے انسان تو نے انصاف نہیں کیا۔ جب مسلم آئے تھے تو جب مسلم آئے تھے تو تکو تنہا تھے، ان کے ساتھ کوئی نہ تھا، لیکن جب میں دربار میں داخل ہو رہا ہوں میرے ساتھ میری بہنیں موجود ہیں، میری مائیں موجود ہیں، میرے ساتھ میری مائیں موجود ہیں، میرے ساتھ میری بہنیں موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خداوند عالم تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ عزیزو، صادق آل محمد کہتے ہیں کہ جب گریہ ہوتا ہے تو تم دعا مانگا کرو، کیونکہ رحمت اپنے جوش میں ہوتی ہے۔ میں کہوں گا اے فار الہ فاطمہ زہرا کا واسطہ، مسلم کا واسطہ، ہماری مشکلات کو دور فرمانا، ہمارے بچوں کو نیکیاں سے سرفراز فرمانا، ہمیں اس طرح سے اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمانا جیسے تو چاہتا ہے، جیسے تیری مشیت چاہتی ہے۔ مسلم کو اسیر بنا لیا گیا کے اندر
खारदार तोख डाल लिया गया, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई। किसी ने जनाबे मुस्लिम की हथकड़ी को हिलाया, हिलाने के बाद कहा कि सामने इब्ने ज़ियाद अमीर बैठा हुआ है, ए मुस्लिम अमीर को सलाम कर। एक मर्तबा मुस्लिम ने कहा ला अमीरी सिवल हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। मैं सलाम तो करूंगा लेकिन अपने अमीर को करूंगा। जनाब मुस्लिम ने दूर से सलाम किया, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला। इधर से मुस्लिम का सलाम जारी हुआ, उधर हुसैन ने सेरा के अंदर बैठे हुए मुस्लिम के सलाम को सुना। अब जब मुस्लिम के सलाम को सुना फौरन ताजीम के लिए हुसैन खड़े हो गए। अलैका सलाम या अखी, ए मेरे भाई तुझ पर हुसैन का सलाम हो। जैसे ही अब्बास ने हुसैन को जवाब सलाम देता हुआ सुना, फौरन कहा ए मौला आप किसके सलाम का जवाब दे रहे हो? तो हुसैन ने कहा अरे कूफे से मेरे अमीर ने मुझे सलाम भेजा है। आज ये हुसैन वादा करता है कि आज से दुनिया मुस्लिम को अमीर कहेगी, इस हुसैन को गरीब कहेगी। एक मर्तबा अब्बास ने कहा मौला मैं कूफे के हालात को जानना चाहता हूँ। हुसैन ने अब्बास की आंखों के सामने हाथ को फेरा। अब जो हाथ को फेरा जनाब अब्बास ने कूफे के मनाजिर को देखा कि मुस्लिम को दारुल अमारा की छत के ऊपर चढ़ाया गया है। चाहता है कि गर्दन के ऊपर वार करे। अब्बास तड़प के मौला इजाजत दीजिए, मुझे कूफा जाने की इजाजत दीजिए। एक मर्तबा हुसैन ने कहा ए भैया अब्बास करब कूफा जाकर क्या करोगे? कहा कि मुस्लिम के सरोतन में जुदाई होने वाली है, मैं नीचे बैठकर भाई के सर को तस्लीम करूंगा। एक मर्तबा हुसैन ने कहा ए भैया अब्बास तुमने दारुल अमारा की छत को देखा है, जरा एक मर्तबा नीचे के मंदिर को देखो। देखो एक काले बुरके में एक बीबी बैठी हुई है जिसने अपनी अबा को फैलाया हुआ है। ए बेटा मुस्लिम, ए बेटा मुस्लिम आ जाओ। जब मुस्लिम की शहादत का पता चला इमाम हुसैन ने जनाबे मुस्लिम की यतीमा को बुलाया। बुलाने के बाद दो बालियां जनाबे मुस्लिम की यतीमा के कानों में पहनाई, माथे पर प्यार किया, सीने से लगा लिया। सकीना तड़प गई, ए बाबा क्या वजह है आज मुझे छोड़कर मुस्लिम की बच्चियों से शफकत फरमा रहे हैं, इनसे प्यार कर रहे हैं? एक मर्तबा हुसैन ने कहा ए बेटी सकीना आज मुस्लिम की बेटी यतीम हो गई है। यतीमों का हक ये होता है कि उनके ऊपर शफकत पदरी की जाए, लिहाजा मैंने ये बालियां पहनाई। अजीजों जब शाम गरीबा आई बच्ची को बाप के कलमात याद थे, मक्तल में दौड़ती हुई पहुंची, ऐना ऐना या अभी, बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो? एक लाशे बेसर से आवाज आई इलैया इलैया या बुनैया, ए मेरी बच्ची मेरे करीब आ जा, ए मेरी बच्ची मेरे करीब आ जा। अब जब सकीना लाशे बेसर से लिपट कर बयान करने लगी, अब जो बेटी ने बाप से बयान किए, बाबा आप तो कहते थे जब कोई यतीम होता है गोशवारे पहनाए जाते हैं, बाबा आज आपकी सकीना यतीम हो गई, लेकिन अश्किया ने मेरे गोशवारों को उतार लिया। ए बाबा आप तो कहते थे जब कोई यतीम हो जाता
ہے تو اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر آ جاتا ہے. بابا میں یتیم ہو گئی ہوں. اب سکینہ نے اپنے ہاتھ سے حسین کے ہاتھ کو ہلانا شروع کیا. اے بابا میرے گوشوارے مجھے پہنا دو, آج سکینہ یتیم ہے. اے بابا وہ میرا بھائی علی اصغر آج یتیم ہے, اس کے سر کے اوپر دستے شفقت پھیرو. اے بابا یہ میرا بھیا علی اکبر آج یتیم ہو گیا ہے, اس کے سر کے اوپر دستے شفقت پھیرو. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ مولانا. جزاک اللہ مولانا صاحب, جزاک اللہ. بار الہی ذکر کے ماشاء اللہ ساتھ مولانا. ان آیات کے سلسلے میں ان ذوات مقدسہ کے ساتھ جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. بار اللہ ہماری علمی, فکری, روحی, اقتصادی, ازدواجی جس طرح کی بھی مشکلات ہیں ان کو دور فرما. بار اللہ امام سجاد کے صدقے میں اور اہل بیت کے صدقے میں ہم سب کی. میں برادر حسن جعفری صاحب سے درخواست کروں گا کہ جناب سید علیہ السلام کو ان کے لال کا پرسہ دیں. جناب حسن جعفری صاحب. فدا ہو گئے زینب کے دلارے, دریا کے کنارے نے کہا محمد گئے مارے, دریا کے کنارے. دیکھیں گے نہ پانی کی طرف آنکھ اٹھا کے, وعدہ تھا یہ ماں سے, وعدہ تھا میدان میں دم توڑ دیا پیاس کے مارے, دریا کے کنارے. فضا نے کہا نو محمد گئے مارے, دریا کے کنارے. خیمے میں ابھی لانے کی جلدی نہیں لوگو, اکبر سے یہ کہہ دو, اکبر سے کہہ دو, بچوں کو میرے بھائی کا صدقہ تو اتارے, دریا کے کنارے. فضا نے کہا نو محمد گئے مارے, دریا کے کنارے. اچھا ہے کہ سوتے رہیں یوں خاک پہ بچے, سائے میں علم کے, سائے میں علم کے. عباس کے قدموں میں رہے لال ہمارے, دریا کے کنارے. فضا نے کہا نو محمد گئے مارے, دریا کے کنارے. یاد آتے ہیں مسلم کے پسر بے کس و مضطر, برپا ہوا محشر, برپا ہوا محشر. قاتل نے جو سر اون و محمد کے اتارے, دریا کے کنارے. فضا نے کہا نو محمد گئے مارے, دریا کے کنارے. گھر لٹ گیا زینب کا قیامت کی گھڑی ہے, خاموش گھڑی ہے, خاموش گھڑی ہے. سنتا نہیں کوئی جو کسے جا کے
पुकारे दरिया के किनारे इंसान ने कहा नो मोहम्मद गए मारे दरिया के किनारे और साहिर हरम शाह में कोहराम बपा है अब की सदा है ज़ैनब की सदा है लुट गई परदेस में हाय हाय मेरे प्यारे दरिया के किनारे फिजा ने कहा ओ नो मोहम्मद गए मारे दरिया के किनारे मामू पे फिदा हो गए ज़ैनब के दुलारे दरिया के किनारे हुसैन 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि ज़ियारत के लिए मैं जनाब प्रोफेसर शाहबाज साहब से गुजारिश करूँगा और दुआ इमाम ज़माना के लिए मैं जनाब अपने जहाज़ भट्टी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो दुआ इमाम ज़माना कराएं। जनाब शाहबाज साहब प्लीज़ ज़ियारत इमाम साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या इमाम हसन अल मुज्तबा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीयीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यिदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या इब्न अल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न हुसैन अश-शहीद, अस्सलामु अलैका या शहीद व इब्न शहीद, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या जमीअन शुहदाए करबला व असीरान करबला, अस्सलामु अलैका या गरीबुल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईनुल दुआफाए वल फुक़रा, अस्सलामु अलैका या साहिबुल असर वज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल-इंस वल जान, अस्सलामु अलैका या शरीकुल कुरान, अस्सलामु अलैका या कामिल कुफ्र व तुग़यान, अस्सलामु अलैका या दाफ़िय ज़ुल्म वल उद्वान, अज्जलल्लाहु फरजक व सहलल्लाहु मखरजक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जनाब जहाज़ भट्टी साहब ज़ियारत दुआ इमाम ज़माना। इलाही अज़म अल बला व बारिक अल खफा व इनकशफ अल ग़िता व इनक़ता अर रजा व ज़ाक़त अल अर्ज़ व मुनीअत अस समा व अंत मुस्तआन व अलैक अल मुश्तक़ा व अलैक अल मुअव्वल फ़ी शिद्दति वर रहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। उलुल अम्र अल्लज़ीना फ़रज़त अलैना ताअतुहुम अर्रफ़ना बिज़ालिका मुनज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बसर व हुवा अक़रबु या मुहम्मदु या अलीयु या मुहम्मद अक्फ़ियानि फ़इन्नकुमा काफ़ियानि वंसुरानि फ़इन्नकुमा नासिरानि या मौलाना या साहिब ज़मान अल-गौस अदरिकनी 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 अस्सा अल-अजल 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 या अरहमर राहिमीन मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह जहाज़ भट्टी साहब। मैं इसके साथ ही कल की इंशाअल्लाह ताला मजलिस में हाजिर होंगे आपके साथ 8:15 बजे ठीक। आप तमाम हज़रात की तशरीफ़ आवी का शुक्रिया। और मैं इसके साथ ही माइक जनाब डॉक्टर ज़फ़र साहब की तरफ बढ़ाता हूँ कि वह आखिरी कलमात इसके लिए अदा करें। फिर इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी और तमाम लोगों के साथ इंशाअल्लाह बात होगी। जनाब डॉक्टर ज़फ़र साहब। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ तमाम हाज़रीन का, तमाम पार्टिसिपेंट्स का, खुसूसन मौलाना का और जिन जिन लोगों ने हमारी इस मजलिस में हिस्सा लिया।